Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Tanishka. I've read your message. Yes, Agrima, good morning. Good morning, Anushka. Good morning, ma'am. Good morning. So we'll be doing a few questions on inheritance today again. We will be using constructors today. So I'll be showing you the question. Please copy that question. Just a second. Yes, this one. It is one of the board questions. It has come in 2014. It has been asked in 2014. So just copy this question. Till the rest of the students join. Can you all see this question clearly? I'll read it out for you. A superclass stock has been defined to store the details of the stock of a retail store. Define a subclass purchase. The superclass name is stock and the subclass name is purchase. To store the details of the items purchased with the new rate and updates the stock. Some of the members of the classes are given below. So you need not write main. Nowhere it is asked that you have to write main. You just have to define both the classes. The details are given here. Class name is stock, data members and instance variables. Data members are item, quantity, rate and amount. Then member functions are, first is a parameterized constructor. Whenever the name of a function is written as the same name as that of a class, it is called as a constructor. You all know that. When three dots or two dots are made here in brackets, can you all see? Two dots are made in brackets, isn't it? This means that it is a parameterized constructor. अगर नहीं भी लिखा होता है, still you have to consider it to be a parameterized constructor. So it is a parameterized constructor to assign values to the data members. When it is blank here, when nothing is made here, no dots, nothing, that means there are no parameters. The next member function is display to display the stock details. Have you written this much? No, ma'am. Okay, write it.
Have you written the first class details? Stock? Yes, ma'am. Okay. Now write the next class details. Purchase. Data members are PQTY, purchased quantity, and P rate to store the unit price of the purchased item. There are three member functions: purchase, which is a parameterized constructor to assign values to the data members of both the classes. We know that the parameterized constructor of the derived class calls the superclass constructor within itself. And in the parameterized list here of purchase, we will be giving all parameters which will be required to initialize the data members of this class plus the superclass. This is what we did in the example. And there are two more functions here: update function and display function. See, there is display function here in the superclass as well as the display function of the subclass. So here we are going to display purchase details before and after updation. Updation मतलब क्या हुआ? Updation मतलब हुआ कि हो सकता है यहाँ पर रेट अलग हो और यहाँ पर यूनिट प्राइस ऑफ परचेज्ड आइटम अलग हो. Understood? Suppose there is a shopkeeper, उसने जो खरीदा है उसका रेट अलग है और जिसमें वो बेच रहा है उसका रेट अलग है. तो दोनों में ये पी रेट एंड रेट की वैल्यूज अलग अलग एंटर करेंगे हम. इसलिए यहाँ पर जो उसकी नेट वैल्यू होगी ऑफ आइटम इन द स्टॉक विल बी क्वांटिटी इनटू रेट, एंड यहाँ पर जो नेट वैल्यू होगी वो होगी पी क्वांटिटी इनटू रेट टू स्टोर द परचेज क्वांटिटी एंड टू स्टोर द यूनिट प्राइस ऑफ द परचेज आइटम. This is the difference. So both these things we have to display in this display functions. So I'll show you the program. You first write down the question. Once you write down, please write in the chat box that you have done. Ravleen has done. Done, children? Yes, ma'am. Okay. So I'll show you the program now. Can you all see?
See here, the question says that first we have to declare a class stock. So I have declared a class stock here, in which there are a few data members. The first is item, to store the name of the item. So we will be taking it as string type variable. The next is quantity, rate and amount, to store the quantity of an item, to store the unit price of an item, to store the net value of the item. So I have taken them as integer. You can take quantity as integer and rate and amount as float. It depends on you. Since it is not specified, आप इसका कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं. क्वांटिटी का इंटीजर ले लीजिए और रेट और अमाउंट का फ्लोट ले लीजिए या डबल ले लीजिए. But I have taken all as integer to simplify my problem. Okay. Next is member functions. The first is a parameterized constructor to assign values to the data members. तो इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, ITE of string type, QT. Children, please mute yourselves. Okay. So item में हमने initialize किया है this parameter ITE, quantity में initialize किया है QT and rate में initialize किया है R. And here we have initialized amount. Amount to the value QTY into rate. Amount is the total amount. Quantity into rate से पता चल जाएगा कितना value है उसकी. Net value of the item in stock. Suppose किसी ने खरीदे 100 pens. Quantity कितनी हो जाएगी? 100. Rate क्या हो जाएगा? Suppose 10 rupees for a pen. 10 rupees. Amount क्या हो जाएगा? 10 into 100. That is 1000. This is the amount is the net value of that item which is there in the stock of the shopkeeper, of the supermarket, whatever. Fine. Next function is display function to display the stock details. So ये चारों variables को we have displayed using system.out.println. This is the end of stock class. So I have put in a brace again here. Next is purchase. Purchase is a subclass. It is a subclass of stock. So I've written here extends keyword. You can see this class purchase extends stock. Int PQTY and PRate. 2 variables are to be declared to store the purchased quantity, to store the unit price of the purchased item. अब इसके अंदर सारे पैरामीटर्स पास करने हैं जो इसके हैं बेस क्लास के एंड जो डिराइव्ड क्लास के हैं वो सब पास हमने करे. एंड सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहां से कॉल होगा यूजिंग द कीवर्ड super. Naina, put your video off. Understood? Super class का constructor कॉल होगा using the keyword super and उसमें हमने ये 3 parameters पास किए ITE, QT and R, string type, integer type and integer type, which will go in here and initialize the variables of the super class. The rest of the 2 variables which are there in this parameterized function will be used to initialize the data members of the subclass. Have you understood this point? Subclass के constructor में हम लोग सारे parameters देते हैं, super class वाले भी and subclass वाले भी. हाँ बोलिए. मैम परचेज भी तो एक कंस्ट्रक्टर है ना? Yes, देखिए परचेज is the class name. हम कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं. ओके. सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर सब क्लास के अंदर. पहले सुपर क्लास के वेरिएबल्स नहीं आएंगे? हाँ आ सकते हैं दोनों. सब क्लास के आएंगे. हम लोगों ने जो बुक में पढ़ा है वो वैसे ही पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं इसको कट करके वैसे ही लिख देती हूँ. ठीक है, कॉमा लगा देती हूँ. अब सही है? इज इट ओके प्रेरणा? यस मैम. सुपर क्लास के पहले वेरिएबल्स ले लिए तीनों जो हमने सुपर क्लास में पास करने हैं एंड लास्ट के 2 वेरिएबल्स सब क्लास में. अब आया अपडेट फंक्शन. अपडेट फंक्शन में जो सुपर क्लास की क्वांटिटी थी और जो सब क्लास की क्वांटिटी है उसको ऐड करके सुपर क्लास की क्वांटिटी में इनिशियलाइज कर दिया. मतलब क्या हुआ? अब हम अपडेट कर रहे हैं ना. सपोज पहले से उसके पास स्टॉक में 100 पेन्स थे और उसने फिर से 20 पेन्स परचेज किए, तो 20 पेन्स कहां पर आएंगे? PQTY में. एंड 100 कहाँ आएंगे? ओरिजिनल स्टॉक में. तो हमारे को ओरिजिनल स्टॉक अपडेट करना है. क्लियर? ओरिजिनल स्टॉक अपडेट होकर 120 हो जाएगा. इफ रेट इज नॉट इक्वल टू पी रेट, सपोज 10 रुपीज के हिसाब से उसने पहले खरीदे थे
और अब उसने खरीदे 8 रुपीज के हिसाब से, तो अब रेट क्या हो जाएगा, 8 रुपीज का नहीं हो जाएगा रेट। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? तो हमने ये अपडेट करा है, क्वांटिटी अपडेट करी है और रेट अपडेट किया ओरिजिनल वाला, एंड ओरिजिनल वाले अमाउंट में रेट इनटू क्वांटिटी फिर से डाल दिया। दिस इज अपडेशन। यस अग्रिमा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए मैम। सुपर क्लास में क्या कर रहे हो, सब क्लास में क्या हो रहा है? सुपर क्लास में हमने लिखा है इट हैज बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक ऑफ अ रिटेल स्टोर। मतलब रिटेल स्टोर में सपोज मंथ एंड में स्टॉक देखते हैं, एक बिग बाजार है, बड़ा सा मार्केट है कोई, उसके अंदर हर आइटम का स्टॉक देख रहे हैं, कितने साबुन बचे हैं, कितने ये बचा है, कितना सर्फ बचा है, कितना व्हाटएवर, कितनी चॉकलेट्स बची हैं। ओके, सो जो उनके पास स्टॉक है वो सब, उन सब की वैल्यूज, आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये उन्होंने निकाला, एंड टोटल अमाउंट कितना कितना उनके पास है, कितने में उन्होंने खरीदा था, और अब वो कितना बाय कर रहे हैं वो परचेज के अंदर है, एक्स्ट्रा बाय कर रहे हैं। सपोज उनके पास सिर्फ, आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल थिंग, पेन्स। सपोज हम लोग पेन्स का क्वांटिटी देख रहे हैं, सपोज उनके पास 100 पेन्स पहले से हैं एंड दे वांट टू बाय 70 पेन्स मोर। तो जो ओरिजिनल आइटम था उसकी डिटेल्स सुपर क्लास में स्टॉक के अंदर उन्होंने स्टोर करके रखी हुई है, एंड परचेज के अंदर वो सारी डिटेल्स हैं जो वो एक्स्ट्रा परचेज कर रहे हैं। तो हमारा ओरिजिनल स्टॉक वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अपडेट? तो ओरिजिनल स्टॉक में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 प्लस 70 मोर, तो 70 ऐड कर दिया इसके अंदर, ओरिजिनल क्वांटिटी में जो अभी परचेज किया है वो ऐड कर दिया, तो 170 हो गया। और अगर ओरिजिनली उसने 10 रुपीज के हिसाब से खरीदा था और अभी अगर वो 8 रुपीज के हिसाब से खरीद रहा है, इफ दे आर नॉट इक्वल, तो अभी उसका रेट 8 रुपीज ही बना देगा, जो अभी न्यू रेट है। दैट मीन्स पहले उसने 10 रुपीज के हिसाब से खरीदा था और बेच रहा था, अब वो 8 रुपीज के हिसाब से करेगा, एंड उसका अमाउंट भी उसी रेट के हिसाब से हो जाएगा जो न्यू रेट है। This is what we are doing in update function. It is given there in member functions. देखिए, to update stock by adding the previous quantity. Question में देखिए, to update stock by adding the previous quantity by the purchased quantity. Quantity into unit price. समझ में आ गया? अब ये रेट भी तो हम यूजर से एंटर करा रहे हैं, तो दोबारा से हमारा रेट भी तो चेंज होना चाहिए, और जब रेट चेंज होगा तो अमाउंट भी चेंज होगा। ये तीनों वेरिएबल्स इसलिए चेंज करेंगे इसमें। एंड डिस्प्ले में सिर्फ प्रीवियस डिटेल्स, सबसे पहले देखिए प्रीवियस डिटेल्स डिस्प्ले कर रहे हैं, सुपर डॉट डिस्प्ले। तो जो ओरिजिनल था हमारा वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद अपडेट किया फंक्शन, इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर उसके बाद अपडेट फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद न्यू डिटेल्स कॉल किया, न्यू डिटेल्स के बाद फिर से सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पहली बार में जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है तब अपडेशन नहीं हुआ है, तब ओरिजिनल जो स्टॉक है उसका वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद अपडेट स्टॉक हुआ, दैट मींस परचेज की वैल्यूज एंटर हुई और वो सब अपडेट फंक्शन के थ्रू ओरिजिनल स्टॉक में ऐड हो गई, और फिर जब न्यू डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं तो सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल दोबारा से करा, क्योंकि हमने ओरिजिनल वाले डिस्प्ले में ही डिस्प्ले वो कर दिया था। हैव यू अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? So if in public static void main I want to call, Yes, ma'am. what will I do? If I want to call purchase function का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, सॉरी, कंट्रोल Z, here I will make an object of purchase function, purchase class, that is the सब क्लास, एंड उसके अंदर क्या डिटेल्स डालूंगी? पहला 5 चीजें मुझे डालनी है इसके अंदर। पहला क्या है? स्ट्रिंग टाइप, दैट मींस आइटम का नाम, सपोज आई एम सेइंग पेन, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है मुझे? क्वांटिटी 100 एंड रेट 10 रुपीज, 100 एंड 10 रुपीज, यही बोला मैंने आपको एग्जांपल अभी। एंड फिर PQ मतलब न्यू क्वांटिटी एंड PR मतलब न्यू रेट। न्यू क्वांटिटी इज 70 टू बी एडेड एंड न्यू रेट इज 8 रुपीज। इज दिस क्लियर? उसके बाद आई विल कॉल obj डॉट डिस्प्ले, बस, बाकी कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आई विल कॉल obj डॉट डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर सारे काम हो गए, ठीक है। ये बंद कर दिया मैंने, मेन क्लास बंद कर दिया। अब इसको सेव करते हैं एंड देन न्यू शेयर। मैम ये वाला डिस्प्ले फंक्शन सब क्लास का है?
बिल्कुल ये सब क्लास का होगा क्योंकि सब क्लास के ऑब्जेक्ट बना हुआ है। देखिए ये डिस्प्ले फंक्शन सब क्लास का होगा, सब Yes, क्लास के ma'am. ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर सुपर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है। लेट्स सी इन कमांड प्रॉम्प्ट नाउ। purchase.java says So ma'am, let me run this program, then you can ask. Java C purchase.java, no errors. देखिए I previous details pen, this is the item name, this is the quantity and this is the unit price. Net value 1000 rupees. New details pen, quantity बढ़ गई, unit price ये रहा और net value अब इसकी इतनी हो गई। आ गया समझ में? Now tell me what is your problem? Who was asking me? कौन पूछ रहा था बताइए? excuse me ma'am. Yes. मैम जब हमने डिस्प्ले फंक्शन मतलब जब कॉल कराया था मेन में, तो जो हमारे सुपर क्लास का डिस्प्ले था वो ओवरराइट हो जाएगा। क्यों होगा? हाँ ओवरराइड हो जाएगा बिल्कुल। दो डिस्प्ले फंक्शन है ना, ओवरराइड हो जाएगा। Yes, ma'am. ओवरराइडिंग होगी, यस। सब क्लास वाला कॉल होता है, सुपर क्लास का कॉल नहीं होगा। अगर सुपर क्लास का कॉल करना है तो ऐसे कॉल किया जाएगा, सुपर डॉट डिस्प्ले की तरह। ठीक है, मुझे करना ही सब क्लास का था तो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो ये वाला डिस्प्ले कॉल होता है। क्लियर है ना? एक्सक्यूज मी मैम। यस ट्रेनर। मैम पहले हमारे पास 100 क्वांटिटी थी, बिल्कुल, और 10 रुपीज फिर हमारे पास 70 और बढ़ गई। यस। तो मैम जो पहले वाली 100 क्वांटिटी थी वो तो 10 रुपीज पर ही काउंट होंगी। हाँ तो वो हमने प्रिंट करा दिया है ना, प्रीवियस डिटेल्स हमने प्रिंट करा दिया तो है। मैम जब न्यू डिटेल्स प्रिंट करा रहे हैं तो वो पहले जो 100 थी उनके वो 10 रुपीज के हिसाब से होना चाहिए और जो बाकी 70 थी वो 80 ऐसा नहीं के होता है हिसाब बेटा, से। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की स्टेशनरी की दुकान है, उसके पास 100 पेन्स रखे हुए हैं जो कि वो 10 रुपए में बेच रहा था, तब सपोज वो 10 रुपए में बेच रहा था, Yes. that means उसका अमाउंट था 1000 रुपीज उसको मिलता उससे, और उसने 70 पेन्स और हाँ। लिए जो 8 रुपीज के हिसाब से उसको बेचने पड़ रहे हैं, उसका प्राइस कम हो गया है, तो अब 170 पेन्स उसको सारे 8 रुपीज के हिसाब से ही बेचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू के 100 पेन वो 10 रुपए के हिसाब से बेचे और बाद के पेन को 8 रुपए से बेचे। ओके, सो वो ये भी अमाउंट भी चेंज हो जाएगा और रेट भी चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर प्राइस कम हो जाता है किसी चीज का तो आपको न्यू प्राइस के हिसाब से ही बेचना पड़ता है, यही उसमें लिखा हुआ है रिटेल स्टोर है वो। इज दिस पॉइंट क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. यू वांट टू राइट दिस प्रोग्राम क्विकली? चलो लिखो फटाफट, देन आई डू वन मोर प्रोग्राम। Ma'am, in order to save time, you can send the pictures on our group. We can copy out later. ओके चलो ठीक है। नाउ टर्न Ma'am, we ऑन। have taken screenshots. If you have taken screenshots, then it's okay. Take it and you can send it to your friends. Okay? पहला वाले पेज का ले लिया? Should I move to the next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, ये दूसरा है, दूसरा क्लास है, इस दूसरे क्लास का ले लीजिए। Done? Yes, ma'am. And main. Yes, Aditi, you want to ask something? You can ask. मैम जब हम सब क्लास बनाते हैं तो हम्म, उसमें जो सब क्लास के ऊपर import java.util या IU except वो IU लिखना होता है। जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली यहाँ Yes, पर ma'am. वैल्यूज दे दी हैं, इसलिए वहां लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं यूजर से एंटर कराती वैल्यूज तो लिखना था, ठीक है? तब यहाँ पर थ्रोज आयो एक्सेप्शन भी लिखना होता। Okay. Okay, so next question is on page number 551, which we are going to do today. 551 book खोलिए अपनी। A superclass number is defined to calculate the factorial of a number. Define a subclass series to find the sum of the series. Can you all hear me? Yes, ma'am.
Ma'am, please tell page number again. Page number 551, last question, program 18. I'm reading from there. Program 18, page 551. Superclass number is defined to calculate the factorial of a number. Define a subclass series to find the sum of this series. 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial till n factorial. अब डिटेल्स देखो दोनों क्लास की, मैंने यहाँ बनाकर रखा है प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा. फर्स्ट पेज देखिए, java.util इंपोर्ट किया, क्लास नंबर, ओके, देन डेटा मेंबर है इसमें n to store an integer number, so I have declared this data member. Next is member functions, number int nn, it is a parameterized constructor to initialize n. ये रहा कंस्ट्रक्टर हमारा. नेक्स्ट इज int factorial int a, ये a का factorial रिटर्न कर रहा है. So I have taken two variables here, I which will be the loop variable, f जिसमें हम factorial store करेंगे. So for I equals to 1, I is less than equal to a, I plus plus, just single statement for loop, इसलिए ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है. f equals to f into I. This much is clear? सिंगल स्टेटमेंट का फॉर लूप है, इसलिए ब्रेस नहीं लगाया है. And return the value of f after this. That means यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो गया ये फॉर लूप, ऐसे. ठीक है, तो फैक्टोरियल a का फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा है. इसके बाद तीसरा फंक्शन है इसमें डिस्प्ले, which is going to display the data member. सिर्फ एक ही डेटा मेंबर है, नंबर इज n. ये क्लास खत्म हो गया. अब नेक्स्ट क्लास इज सीरीज, extends number, this is the सब क्लास. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें, int sum to store the sum of the series, this is the data member. Next is a parameterized constructor to initialize the data members of both the classes. अब ये सब क्लास है तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो दो पैरामीटर्स होंगे. एक सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फर्स्ट पैरामीटर उसमें जाएगा. दूसरा सब क्लास का सब क्लास के वेरिएबल में इनिशियलाइज होगा. सम इक्वल्स टू s like this. Any doubt still here, Aditi? No, ma'am. Okay. Next function is calsum. Calculates the sum of the given series. अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है j. j की वैल्यू 1 से n तक चल रही है. अब जब सब क्लास होता है, सब क्लास कैन आल्सो एक्सेस द डेटा मेंबर n ऑफ द बेस क्लास. सो 1 से लेकर n तक हर बार फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि सुपर क्लास का है और उसमें j पास हो रहा है. j मतलब पहली बार में 1 पास होगा एंड इट विल रिटर्न 1 फैक्टोरियल जो कि सब में ऐड हो जाएगा. फिर 2 पास होगा तो 2 फैक्टोरियल सब में ऐड हो जाएगा. फिर 3 फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा. डायरेक्टली यहाँ पर जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन से, रिटर्न f, यही तो फंक्शन है जिसमें हम पास कर रहे हैं हर बार वैल्यू. क्लियर? दिस इज द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. दिस इज द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. जो भी रिटर्न होगा वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा. दैट मींस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल टिल n फैक्टोरियल. मैम इसे सुपर डॉट फैक्टोरियल से कॉल नहीं करेंगे? इसकी क्या जरूरत है? एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो सकता है इफ बोथ आर नॉन स्टैटिक. मैम वो तो सुपर क्लास का फंक्शन है ना फैक्टोरियल. लेकिन ओवरराइडिंग तो नहीं हो रही है ना, अलग अलग फंक्शन है. फैक्टोरियल अलग फंक्शन है, कैलसम अलग फंक्शन है. अगर ओवरराइडिंग अगर मैम सुपर डॉट करके, अगर दोनों का सेम नाम होता तो सुपर डॉट फैक्टोरियल लिखते. अदरवाइज इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि बेस क्लास के सारे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस अगर पब्लिक है एंड नॉन स्टैटिक है तो सब क्लास के अंदर डायरेक्टली यूज हो सकते हैं. क्लियर? ओके मैम. यहाँ पर सम आ जाएगा. फिर आया void display. देखिए डिस्प्ले फंक्शन में क्या करना है, display data members of both the classes. So first I am calling super dot display. Just a second Agrima. Let me explain the program first. सबसे पहले मैंने super dot display कॉल किया, उससे क्या होगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा. फिर sum of the given series प्रिंट कर दिया यहाँ पर sum. This is all you have to do. अब इसके बाद मैंने मेन बनाया है जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रन करा सके हम. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, int x, एंटर अ नंबर, x में करा. अब व्हाट आई हैव डन हियर, सीरीज का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू सीरीज x, 0, x, 0, दैट मींस नंबर यहां पास किया एंड सम के अंदर 0 इनिशियलाइज किया. सम के अंदर वैल्यू पास करिए 0. जस्ट अ सेकंड नैना, लेट मी कंप्लीट द प्रोग्राम देन यू मे आस्क. सी सीरीज क्लास का यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सीरीज क्लास का, ये रहा.
पहला वैल्यू किस में जाएगी, सुपर क्लास में, दैट मींस नंबर n के अंदर, एंड दूसरी वैल्यू सम के अंदर इनिशियलाइज होगी। सम में 0 इनिशियलाइज कर दिया एंड नंबर के अंदर x भेज दिया। फिर कैलसम फंक्शन कॉल किया व्हिच इज गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फैक्टोरियल्स ऑफ ऑल द नंबर्स, एंड फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया जिसके थ्रू हम सुपर क्लास का डिस्प्ले भी कॉल कर रहे हैं एंड सम ऑफ द गिवन सीरीज भी प्रिंट कर रहे हैं। दिस इज द होल प्रोग्राम। नाउ यू मे आस्क मी, देन आई विल शो यू द एग्जीक्यूशन। यस नैना, यू वांटेड टू आस्क? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हमने अगर मैम हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो हमारा स्टैटिक नहीं होता तो क्या होता? स्टैटिक अगर होता, अगर मैम स्टैटिक नहीं होता। नहीं है, कहाँ है फैक्टोरियल फंक्शन स्टैटिक, कहाँ लिखा है स्टैटिक? नहीं मैम, हमने उसे सुपर के थ्रू कॉल क्यों नहीं कराया, खाली फैक्टोरियल लिख दिया। देखो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई क्लास किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट हो रही है, ये नंबर क्लास हैज बीन इनहेरिटेड इन द क्लास सीरीज, then all its public members, these are the public members, and the member functions which are public will be a part of this class also. मतलब फैक्टोरियल अब इसका भी पार्ट हो गया है, डिस्प्ले अब इसका भी पार्ट हो गया। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एक फंक्शन को दूसरे को, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। यस और नो? यस मैम। So this is what we are doing. We are directly calling one function from another function. The subclass function will call the superclass function. But if both the functions are having the same name, then the subclass function जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तब ओवरराइडिंग होगी, सिर्फ सब क्लास का फंक्शन कॉल होगा। उस केस में सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे ये डिस्प्ले फंक्शन था, सुपर क्लास में भी था और सब क्लास में भी था। अब अगर मैं यहाँ पर कॉल कर रही हूँ obj.display मेन के अंदर, तो कौन सा कॉल होगा? तब हमारा सब क्लास का फंक्शन कॉल होगा क्योंकि वो ओवरराइड करता है। यस अदिति? मैम अब हम जैसे हमने पब्लिक में मेन में हमने एक्स को वो कराया है, इनपुट कराया है, तो हम इंपोर्ट लिखेंगे ना सब क्लास के ऊपर। मैंने लिखा तो है, यहाँ पर मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करा है और यहाँ पर देखो सबसे ऊपर यूटिल लिखा तो है। अगर आईओ से करना चाहे तो आप यहाँ पर io.asterisk लिख सकते हैं, तब आप यहाँ पर लिखेंगे throws IO exception and input stream reader and buffered reader. Both methods you can use. Either you use scanner class or you use input stream reader, buffered reader. Both are correct and both are acceptable. मैम क्लास सीरीज के ऊपर लिखेंगे हम? सीरीज के ऊपर क्यों लिखेंगे? इसके ऊपर नहीं लिखेंगे बेटा, एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार इंपोर्ट फंक्शन लिखा है, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा जाता है। एक प्रोग्राम में सिर्फ एक बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा जाता है जो सबसे ऊपर लिखते हैं, चाहे उसमें 10 क्लासेस बने चाहे 50 क्लासेस बने, सिर्फ एक बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा जाता है, हर क्लास के ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है दीदी? यस मैम। Any other doubt? Should I show you the output now quickly? Series.java. देखिए Java C series.java, Java series could not load main। अभी क्या हो गया? मेन क्यों नहीं आ रहा है? क्लास सीरीज एक्सटेंड्स नंबर कैलसम पब्लिक स्टैटिक। मैम आप बताइए। सीरीज का छोटा बनाया है। अच्छा, यहाँ पर सेव भी मैंने नहीं किया क्या ठीक से? सेव एज, ठीक है, series.java कमांड प्रॉम्प्ट enter a number, let me say 5। देखिए number is 5, sum of the given series is 153। 5 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial, ये प्रिंट हुआ। Is it correct? 1 plus 2 plus 6 plus 24 plus 120, 153 ही आएगा। That means our program is correct. Have you understood this program, children? This is how you have to do the programs. बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी 2018 का,
इसलिए इसमें आप ये पार्ट नहीं लिखेंगे। मैंने आपको रन कराने के लिए मेन लिखा है, आपको मेन नहीं लिखना है, आपको ये डिस्प्ले फंक्शन तक लिखना है और फिर क्लास को क्लोज कर देना। इज इट क्लियर? इट इज गिवन देयर using the concept of Yes, ma'am. inheritance. Specify the superclass number in the derived class series. Perform the task by giving the details of constructor, void calsum and void display. That's all. You need not write main if it is not asked. Because I wanted to run the program to execute it, so I have written main. आप प्रैक्टिस करते समय लिख लीजिए, लेकिन एग्जाम में जरूरत नहीं है। If you want, you can write. कोई इसमें कटेगा नहीं नंबर। Any other doubts? मैम कैल्शियम को हम लोग सीरीज क्लास में नहीं कर सकते हैं? सीरीज क्लास में तो किया हुआ है, ये सीरीज क्लास नहीं है। नहीं मैम, मेन में किया है ना मैम, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? डायरेक्ट नहीं लिख सकते मतलब कैसे लिखेंगे? एक फंक्शन को नॉन स्टैटिक फंक्शन में, एक स्टैटिक फंक्शन को एक नॉन स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो कॉल करते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट भूलो मत। Main is a static function. It can call the non-static members of the class only through the object of the class. Main के आगे static लिखा है या नहीं लिखा है? यस मैम। इसके आगे static लिखा है कहीं पर? नहीं। इसलिए अगर हमारा कैल्शियम भी स्टैटिक होता तब नहीं, तब जरूरत नहीं थी, तब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। Okay. Is it clear now? So I'll stop this meeting. You can give your attendance in the group. मैम प्रोजेक्ट में मेन लिखना है? हाँ लिख लीजिएगा, नहीं तो आउटपुट कैसे दिखाएंगे आप? ओके मैम। यस मैम। आउटपुट कैसे दिखाएंगे आप? Fine. Thank you, children. Please give your attendance in the group. Thank you, ma'am.